کہ آپ لوگوں کو اللہ نے اپنے گھر میں بلا لیا. یہ بڑی عظمت کی بات ہے. یہ بڑے نصیب کے ہیں. یہ فیصلے بڑے نصیب کے ہیں. جسے چاہا اسے نواز دیا. یہ در حبیب کی بات ہے. یہ جہاں حاضری لگ جاتی ہے اللہ رب العالمین اسباب پیدا فرما دیتا ہے. یہ رات عظمت والی رات, یہ رات مکرم رات, یہ رات رفت والی رات, یہ رات جسے شب معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اسلام کے شہزادوں, اس وقت ہم آج بھی اس دنیا کی اس دونوں گون کے اندر ہیں. نہ معلوم ہمارا دل و دماغ کہاں چل رہا ہے. رب ذوالجلال ہر پل پر آپ کو امتحانات کے لیے کھڑا کر رہا ہے. اللہ رب العزت آپ لوگوں کے لیے ایسے معاملے ظاہر فرماتا ہے. ہو سکتا ہے میرا بندہ یہ نظارہ دیکھ کر کے تائب ہو جائے, گر گڑا جائے اور میری بارگاہ میں رجوع کر لے. میں اس کی بخشش کے لیے اسباب پیدا فرماتا ہوں. لیکن یہ انسان کتنی غفلت میں ہے, یہ انسان کتنی عظیم غفلت کا شکار ہے. ہمارے اور آپ کے بیچ میں صبح اور شام موت آپ کے سر پر منڈلا رہی ہے. موت ہر دروازے پر دستک دیتی ہے. موت آپ کی ذات نہیں پہچان کرتی ہے. موت آپ کے مسلک کو تلاش نہیں کرتی ہے. موت آپ کے مذہب کو تلاش نہیں کرتی ہے. بلکہ رب نے ایک اعلان عام کر دیا ہے, اے لوگوں جو بھی ذی روح چلا گیا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ذی روح نے مرنا ہے, اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے. اب ہمیں سمجھنا ہے وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو کھینچ کر کے اس دنیا کے دلدل میں لا رہی ہے. وہ کون سے معاملات ہیں جو ہمیں یاد الہی سے دور کر رہے ہیں. وہ کون سے ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی رحمت سے دور رکھا ہے. اسلام کے شہزادوں, یہ مقدس رات, یہ وہ عظمت والی رات ہے. آئے تھوڑی دیر کے لیے جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ کا عظمت والا قرآن, اللہ کا مقدس کلام اعلان کر رہا ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اے لوگوں یہ نماز تمہیں ہر برائی سے محفوظ کر لے گی. اے لوگوں یہ نماز تمہیں ہر برے اعمال سے محفوظ کر لے گی. اور یہی نماز تو ہے جس سے تمہیں دلوں کو سکون ملتا ہے. پھر ہم تلاش کرتے ہیں نجات کے راستے کہاں پر ہیں. آج کی رات میں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے اللہ کی رضا کے لیے, آپ لوگ اللہ کے گھر میں آئے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عظمت والی کوئی جگہ ہے, عظیم کوئی جگہ ہے, محبوب کوئی جگہ ہے, اعلیٰ کوئی جگہ ہے جسے اللہ نے پسند فرمایا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ نے اپنے گھر کو پسند فرمایا. تو اندازہ لگائیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں. آج بھی لوگ شراب کی بوتلیں پی کے گھروں میں پڑے ہوں گے. یہ بدنصیبی کی بات ہے. کیا تم اپنی جوانیوں پر ناز کرتے ہو؟ کیا تم اپنی جوانیوں کا غرور دکھاتے ہو؟ کیا تم لوگوں پر یہ باور کروانا چاہتے ہو تمہارے پاس اقتدار ہے, تمہارے پاس سرمایہ ہے, تمہارے پاس سرما ہے, تمہارے پاس گاڑی ہے؟ کس چیز کے نخرے ہیں؟ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے جب رب کی بارگاہ میں حساب کے معاملے پیش کیے جائیں گے تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے یہ ساری دنیا الا متاع قلیل رب کی بارگاہ میں بڑی حقیر سی چیز ہے. یہ بڑی چھوٹی چیز ہے. ساری دنیا, ہمیں ایک موٹر سائیکل مل جائے تو ہم زمین پر پاؤں نہیں رکھتے ہیں. ہمیں ایک گاڑی آ جائے ہم اپنے آپ کو معاشرے کا حصہ ہی نہیں سمجھتے ہیں. یہ رب کی عزت, وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ, عزت اور ذلت تو رب ذوالجلال نے دست قدرت میں رکھی ہے. آج ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں. آج ہم نے محاسبہ کرنا ہے. آج ہم نے اپنا احسار کرنا ہے. آج ہم نے اپنا حساب تلاش کرنا ہے. 1 سال کی مدت کے بعد ہم پھر اس دن میں, آج کی رات میں اسی انداز میں پھر کھڑے ہوئے ہیں. اے اسلام کے مقدس شہزادوں, ابھی حضرت نے آپ کو ترکی کے معاملات کی طرف اپنی طرف کی توجہ مبذول کروائی ہے. کیا آپ نہیں جانتے ہیں 50 منزلیں جب رب کے امتحان کے اندر چلے جائیں وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں, لیکن لوگ غفلت کے اندر ہیں. لوگ سوچتے ہیں اس کی باری ہے, میری باری نہیں ہے. اس شہر میں ایسا ہوا ہے, میرے شہر میں نہیں ہے. ہم قرآن کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اے قرآن یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ زمین ہل کہاں سے رہی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے, اللہ
अल्लाह का अजमत वाला कुरान रहबरी करता है। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु वस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन। कहां सो रहे हो? अल्लाह फरमाता है जब मैं इस जमीन को हरकत दे दूंगा, एक आंख पर झपकने में, आंख झपकने के अंदर मैं सारी जमीन को ऊपर का नीचे कर दूंगा। तुम्हें एहसास नहीं होगा जब तुम गिरते महल्लात देखोगे, जब गिरते पहाड़ देखोगे, जब जमीन को फटते देखोगे। वक़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन, उस वक्त तुम्हारी जुबान पर कुछ नहीं होगा। अगर होगा यही कि लोग दौड़ रहे होंगे, आपस में पूछ रहे होंगे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये हमारी रात का है। ऐ इस्लाम के शहजादे, आज जिस रात में तू बैठा है ये अपने अंदर आपकी पूरी हयात में करके बैठी है, आपकी पूरी जिंदगी लेकर के बैठी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आकाए कुनैन, आमिना के लाल, बेकसों के कस, यतीमों के वाली, बेसहारों के सहारा, जब सारी दुनिया डगमगा रही थी, रब्बे जुल जलाल ने नजरे करम दुनिया पर करी, इस अंदाज में करी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये नबी मैंने दिया है, इसमें अपनी रहमत के अंदर सारी दुनिया को छुपा डाला। फिर वो नबी चला, जरूरी था, नबी का चलना भी बड़ा जरूरी था। अल्लाह का कुरान फरमाता है हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिन। ये नबी अव्वल भी है, ये नबी आखिर भी है, ये नबी ज़ाहिर भी है, ये नबी बातिन भी है। एहसास कर रहे हैं फिर कौम को जरूरत थी, इंसान को जरूरत थी जिंदगी को बेहतर कैसे बनाया जाए, हम अच्छे अंदाज में कैसे आगे बढ़े, हम अपनी लाइफ को कैसे बेहतर तरीके से एंजॉय करें, हम अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से कौम के सामने कैसे बयान करें। तो अल्लाह का मुकद्दस कुरान ऐलान करता है, ऐ मेरे मुस्तफा के गुलाम, लक़द काना लकुम रसूलुल्लाहि उस्वतुन हसना, ये रसूल मैंने तेरे लिए नमूना हयात बना करके भेजा। जिंदगी के जिस दौर को देखना है, जिंदगी के जिस स्टेज को देखना है, तुमने रसूल आजम की ज़ात मुबारका को देखना होगा। जब हम रसूल आजम के फरमान के मुताबिक, रसूल आजम की तालीम के मुताबिक, रसूल आजम के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारोगे, रब्बे जुल जलाल ये दुनिया तुम्हारी ठोकरों में अता फरमा देगा। तारीख गवाह है, जब जब लोग अल्लाह से जुड़े रहे, जब जब लोग कुरान से जुड़े रहे, जब जब लोग नमाज से जुड़े रहे, जब जब लोग याद इलाही से जुड़े रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजारों बरस ये दुनिया की हुकूमत उनके हवाले कर दी। जब इंसान जफाकश हुआ, जब इंसान नाफरमान हुआ, जब इंसान अल्लाह की याद से दूर हुआ, जब इंसान अहकाम से दूर हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको आजमाइश में डाल दिया। आका कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर चलाया, मक्कातुल मुकर्रमा में चलाया, आपको चलने का तरीका आ जाए। जब हम जमीन पर दौड़ते हैं, हमें दौड़ने के कुछ आदाब हैं। मेरे आका फरमाते हैं कदम जमीन पर रखते हो तो इस अंदाज से रखो कि एक मोमिन चल रहा है। अगर तुम तकब्बर और गरूर के अंदर इस जमीन पर दंदना रहे हो, कल कयामत के दिन से तो इंतजार दूर का है, कब्र के अंदर ये जमीन तुमसे हिसाब लेगी। ऐ इंसान, जिंदगी भर तो मुझ पर दंदनाता रहा है, आजा मेरी गोद के अंदर आजा। आज तो वो वक्त आया है, आज मिलन का सही टाइम आया है, आज तेरी और मेरी मुलाकात है। और जब कब्र मुलाकात करती है ना, वो इस अंदाज में करती है, मेरे आका फरमाते हैं कब्र की अजाब से अल्लाह की पनाह मांगो, कब्र की अजाब के लिए तैयारियां कर लो, कब्र की रहाई के लिए असबाब पैदा कर लो। जब कब्र को रख देते हैं, जो गुनहगार होता है, कब्र सिमट जाती है, इस अंदाज से सिमटती है, बाईं पसलियां दाएं में चली जाती हैं और दाएं पसलियां बाएं में चली जाती हैं। अल्लाहु अकबर। फिर पता लगता है हमने क्या किया है। मेरे आका कुनैन ने चलने का तरीका बता दिया, आका कुनैन ने आपको खाने का तरीका बता दिया, आका कुनैन ने आपको कुव्वत गोयाई का तरीका बता दिया है, आपको बात करने का सलीका बता दिया है। अल्लाह के हबीब ने आपको हर हकूक दे दिए हैं, हर आदाब तुम्हारे हवाले कर दिए हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकाम मुस्तफा को उजागर करना था, नबी कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम रिफात को बयान करना था। अल्लाह ने इस रात शब मेराज का इंतखाब फरमाया। सुभान अल्लाह। जिस रात में आप बैठे हैं, यही एक रात थी, यही एक शब थी, इसी अंदाज में थी कि अल्लाह का हबीब आराम करके नमाज इशा पढ़ी, आराम करके सो गए।
वो नबी जो कभी सोता ही नहीं था, जिब्रील को कहना पड़ गया, अल्लाह की तरफ से हुक्म लेकर आया हूं, ए मुस्तफा आधी रात को पढ़ो, आधी रात इबादत करो, आधी रात आराम कर लिया करो। सुभान अल्लाह। जानते हैं सरकार ने क्या जवाब दिया? आका ने फरमाया, ए जिब्रील, मैं बिस्तर के करीब जाता हूं, जब मैं सोने का इरादा करता हूं, मुझे अपने गुनहगार उम्मतियों के गुनाह याद आ जाते हैं, फिर सर सजदे में रख देता हूं, फिर सर बसुजूद होता हूं, रात की दुआ में दुआ के लिए हाथ दराज करता हूं, अल्लाहुम्मा रब्बी हब्ली उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बी सल्लिम उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत की सलामती फरमा दे, मेरी उम्मत की हिफाजत फरमा दे। ए जिब्रील आराम नहीं कर सकता। तब रब ने फरमाया, वादा किए रहा, जब जब तेरा गुनहगार उम्मती मेरी बारगाह से रजू करता रहेगा, अपने गुनाहों से बाज आता रहेगा, तौबा करता रहेगा, इस्तिगफार करता रहेगा, मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कसम, मैं अपने हर उस बंदे की तौबा को मुस्तजाब करता रहूंगा। इसलिए तौबा मोमिन का हथियार है। तौबा ही के जरिए से इंसान मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ता है। गुनाह हो, उसके बाद अल्लाह तौफीक दे दे हम अश्कबार हो जाए, वो आंसू इस अंदाज में गिरे कि हमारी नजरें रब्बे जुल जलाल की रहमतें तलाश कर रही हो, आपका सर सजदे में हो, आपकी आंखें अश्कबार हो जाए और जिंदगी के सारे गुनाह हो जाए, वो गुनाह सामने आ जाए जो गुनाह दिन के उजाले में है, वो गुनाह जो रात के अंधेरे में किए हैं। या अल्लाह इस रात के सदके में सबकी माफी अता फरमा दे। हर इंसान चाहता है, हर मखलूक चाहती है, मेरा खुदा मुझसे राजी हो जाए, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। लेकिन एक दिन अल्लाह का कुरान फरमाता है, इन्नल्लाह इश्तक़ाई लिक़ाइका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहीम ए जिब्रील दौड़ के जाओ और हबीब की बारगाह में जाओ। सुभान अल्लाह। सरकार से कह दो कि आज ये मदीना मक्कातुल मुकर्रमा में बैठने की रात नहीं है, अल्लाह तुम्हारे दीदार का मुश्ताक है। कह दो सुभान अल्लाह। उस नबी का मुकाम कितना होगा जिस नबी की ज़ियारत के लिए, जिस नबी के दीदार के लिए रब मुश्ताक हो। ये अल्लाह का कुरान फरमाता है, ए जिब्रील जाओ और मेरे हबीब से कह दो अल्लाह तेरी मुलाकात का मुश्ताक है। जिब्रील आते और हबीब की बारगाह में सरकार ने चादर मुबारक को तान लिया है, आराम से सो रहे। गौर फिक्र का मकान है। कुछ मामलात हैं, सैयदुल मलाइका रूहुल मलाइका सैयदना जिब्रील को ऑर्डर दिया, ए जिब्रील या जिब्रीलो कबल कदमई, ए जिब्रील खड़े क्या हो, चूम लो मेरे मुस्तफा के कदम को। जब आपकी काफूरी आंखें मुस्तफा के कदमों को मस करेंगी, मेरा महबूब जाग जाएगा। सुभान अल्लाह। साबित करना क्या था कि जिब्रील अमीन भी तो किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार है, जिब्रील अमीन भी तो हाथ बांधे खड़ा है, सफों दर सफा खड़े हैं। एक हदीस के रूह से आता है कि हजरत जिब्रील 70,000 फरिश्तों की जमात के साथ तशरीफ लाए। बुराकों की एक कतार खड़ी है। एक बुराक कहता है मुझे मिल जाओ, एक बुराक कहता है आज मुस्तफा मुझ पर सवार है। लेकिन सरकार की अजमतों पर कुर्बान जाओ, सरकार ने तलाश किया कि इतने बड़े बुराकों में मैं किसको चुनूं और किसको ना चुनूं। हर बुलाक ये तमन्ना लेकर के बारगाहे मुस्तफा में है कि आज नबियों का इमाम मुझ पर सवार हो जाएगा। लोग कहते हैं इतने सफर कैसे बना? ये बुराक क्या है? ये बर्क से है, बर्क बिजली को कहा जाता है। ये बुराक जब चलता है इस अंदाज में, इस रफ्तार में, इस अंदाज से चलता है जैसे आपकी निगाहें छटकने में आप आसमान की बुलंदियां देखते हो। इस तरह बुराक की पहली कदम पर पहला आसमान होता है, दूसरी उड़ान पर दूसरा आसमान होता है। बर्क बिजली के चमकने की तरफ बुराक चलता है। जब मेरे हबीब ने देखा एक बुराक एक कुएं के अंदर रो रहा है, अश्क बहा रहा है, सब लोग मुतवज्जे हो गए, सारे फरिश्ते ने। जिब्रील ने पूछा, ए बुराक आज रोने का सबब क्या है? तुम क्यों रो रहे हो? आंसू क्यों बहा रहे हो? सारा जहां तो खुशियां मना रहा है, तुम क्यों रो रहे हो? मायूस क्यों हो? वो बुराक कहता है मुझे अपना आप नजर आ रहा है, मैं अपने आप पर निगाह डालता हूं, मैं सोचता हूं मैं इन सारे बुराक
बुराकों में कम हूं, मैं इन सारे बुराक मुझसे बेहतर हैं, सारे बुराक मुझसे आला है, सारे बुराक मुझसे अफजल है। मैं सोचता हूं मेरी बारी कहां आ सकती है, मैं मुस्तफा को अपने ऊपर सवार कर लूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मेरे हबीब ने जब जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील वजह बताओ, सबब क्या है? जिब्रील ने बयान किया, या रसूल अल्लाह, यह अपनी नातमानी पे रो रहा है, अपनी कमजोरी पे रो रहा है, इसलिए बाकी बुराक खुशियां मना रहे हैं। मेरा अंदाज ये है, कोई खुशी होकर मुस्कुरा करके हंस के अपने महबूब का मना लेता है, कोई दो आंसू बहा के अपने महबूब का मना लेता है। बाकी बुराक हंस के मुस्कुरा के महबूब को मना रहे हैं, मैं अश्क बहा के अपने महबूब को मना रहा। वक्त आया, सरकार ने उस बुराक का इंतखाब किया। जानते हैं हमें मोहब्बत किस लिए है? सरकार को फरमाया कि ऊपर आ जाओ। इससे पहले ये रात है, आप सूरह आलम नशराह को निकाले, आलम नशराह का सदरा का कि फरिश्तों के जरिए से आका कुरैन का सीना मुबारक को शक किया गया, आब कौसर से गुस्ल दिया गया, उसे सीना गया। यानी कि कुरान अजीम के जिस पारे में जाओगे, जिस सूरत में जाओगे, जिस लाइन में जाओगे, जिस अंदाज में जाओगे, मोहब्बत रसूल निछावर करते हुए ले जाएंगे। अजमत रसूल के आपको मुकम्मल जो है वो फूल खिलते हुए नजर आ जाएंगे। तो जब जिब्रील ने फरमाया या रसूल अल्लाह सवार हो जाएं, तो मेरे आका ने कदम मुबारक को थाम लिया। फरमाया कि मेरे ऊपर तो आज अल्लाह की इतनी रहमतें बरस रही है, मैं आज परेशान हूं, मैं जिस बुराक पर चाहूं सवार हो जाऊं, मेरी उम्मत का क्या होगा? मेरी ये गुनहगार उम्मत जब पुलसिरात पर से गुजरेगी, जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, हर इंसान ने उसका सफर पार करना है। बताओ मेरे उस गरीब उम्मत के लिए, मेरी मुफलिस उम्मत के लिए, गुनहगार उम्मत के लिए क्या सबब होगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ऐ महबूब आओ, तुम्हारा रब तुम्हारी उम्मत के लिए काफी है। तुम्हारे उम्मत गुनहगार है, बख्शने वाला उसका परवरदिगार है। तो मैंने वादा कर लिया है कि मोमिन अपने गुनाहों से तायब होता रहेगा, रब उसकी तौबा को मकबूल फरमा लेगा। परवाज किया, पहले आसमां पर गए, दूसरे पर गए, सिस्टम चलता रहा। सरकार फरमाते हैं कि मैं जब चौथे आसमान पर गया तो मैंने कुछ देखा। आपकी तवज्जो है? फरमाते हैं मैंने देखा कुछ लोगों की जुबानें बाहर निकली हुई हैं और उन जुबानों से उन लोगों को लटका दिया गया। मैं पूछा यार जिब्रील से कि ये कौन लोग हैं? फरमाया ये वो लोग हैं जो एक दूसरे की गीबत किया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके लिए आजाद को मुख्तस कर दिया गया। जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत गफूरुर रहीम है, वहां अगर आप हदूद के अंदर नहीं रहेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है मैं कहार और जब्बार भी हूं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां जन्नत के हसीन वादियां तुम्हारे लिए बिछाई है, अगर तुम ज़ाब्ते में नहीं आओगे, तुम दायरे में नहीं आओगे, तो अल्लाह का कुरान ऐलान करता है जहां अल्लाह ने जन्नत को बनाया है, वहीं अल्लाह ने जहन्नम को भी मुरतब कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सफर का आगाज हुआ और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब आपको बिठाया, आप चल पड़े। जब आप सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे तो रुक गए। बुराक भी साथ रहा, सिस्टर रह गए। मस्जिद अक्सा में जब मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा आए तो बड़ा टाइम दरकार है। वहां आका कुरैन ने तमाम अंबिया किराम की इमामत को फरमाया। तमाम अंबिया किराम जमा थे और सरकार अलैहिस्सलाम के लिए मुसल्ला इमामत खाली है। सरकार आते हैं और सीधा मुसल्ला इमामत पर तशरीफ ले जाते हैं और फरमाते हैं कि वही हूं जो मैं सबसे पहले आया हूं। आज सारे अंबिया के आखिर में आने वाला मस्जिद अक्सा में अंबिया किराम को जमा करने के बाद सरकार ने इमामत फरमाई। सिदरा पर गए तो जिब्रील ने भी फरमाया कि या रसूल अल्लाह आगे खुद चले जाओ, अब मैं आगे नहीं जा सकता। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब साथ छोड़ा तो सरकार ने फरमाया क्यों छोड़ते हो, वजह बताओ। तो सरकार अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कुछ मामलात सामने आते हैं जो बज़ाहिर कुछ चीजें जहन और दिमाग में बैठती हैं कि गोया जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कुरान अजीम की आयत मुबारका के तफसीर के मुताबिक
جب مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی میں آئے، زمین و آسمان کا سفر طے کیا، سدرہ تک پہنچے، جبریل ساتھ ہیں، چل رہے ہیں، نہیں رک پا رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ جب آپ نے لباس بشر پہنا ہے، ایک نقطۂ نظر ہے جو میری سمجھ میں ہے، رکھتا ہوں، اگر کہیں فرق لگے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ جو جبریل جب لباس بشر میں ہے تو فرمایا حبیب تیار ہو جاؤ، چادر کو تنہا کر دو، اور اللہ آپ کی دیوار کا مشتاق ہے۔ چل پڑتے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی آتے ہیں۔ اب ضرورت ہے آسمان پر جانے کے لیے، اب ضرورت ہے نور میں آنے کے لیے، تو فرمایا کہ ساری میں 70,000 ملائکہ کی میں اپنی جماعت کے ساتھ آیا ہوں، یہ اللہ کی نوری مخلوق ہے، اللہ کی اس نوری فرشتوں کی جماعت میں شامل کر کے لے جا رہا ہوں۔ گویا کہ حبیب اب نوری لباس کو تبدیل کر لو، آپ لباس نور کے اندر آ کر کے سدرۃ المنتہا پر چلے گئے۔ اب رکنے، جبریل ٹھہر گئے، آواز دی، فروغ تجلی بسوزت پرم۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جبریل نے کہا اگر پر کے نوک کے برابر بھی گیا تو جل جاؤں گا، میں نہیں جا سکتا۔ سرکار آگے گئے، پھر قرآن عظیم سے ہمیں اس کا حوالہ ملتا، اللہ نے اس سے آگے رف رف کو پیدا فرمایا، رف رف کو پیدا فرمایا۔ پھر ایک ثبوت یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سدرۃ المنتہا سے آگے سفر کے لیے 70,000 حجاب کو آقا کونین پار کرتے ہیں، اور ایک حجاب کی موٹائی زمین و آسمان کے برابر، ایک حجاب اور دوسرے حجاب کے بیچ میں فاصلہ زمین و آسمان کے برابر۔ تو پھر کعبہ، اللہ کا قرآن فرما قاب قوسین فتدلی، مطلب ایسے سے مقام سے، مراتب سے اللہ نے سرکار کو نوازا۔ جب فرمایا کہ جب میں قریب چلا گیا تو آواز آئی ادنو منی، اے نبی میرے قریب آ جاؤ، میرے محبوب میرے قریب آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا آج کی رات میں رب کے اتنے قریب ہو گئے، ایک حدیث پاک کے مفہوم سے سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے دستے قدرت کو میرے کاشانے پر رکھا، اور میرے کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو میں نے ملاحظہ نہ فرما لیا، میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا۔ پھر رب نے فرمایا، پہلا جملہ تھا جو مقام خاص پر گئے، ایک ہے نا، ایک ہے مقام لا مقام پر گئے، سرکار معراج میں لا مقام پر گئے، تو گویا مقام وہ کہتے ہیں جس چیز پر ٹھہرا جائے، جو جگہ ٹھہرنے کی ہے اسے مکان کہا جاتا ہے، اور جو ٹھہرنے کی جگہ نہیں اسے لامکان کہتے ہیں، یعنی مکان کے بغیر۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب لامکان پر پہنچے، بتاؤ سرکار کے لیے وہ کیا ہو گیا؟ لامکان ہمارے حبیب کے لیے مکان بن گیا، لامکان میرے حبیب کے لیے مکان بن گیا۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے ادنو منی ادنو منی، اے میرے حبیب میرے قریب آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ، اے مصطفیٰ تم مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، تاکہ مجھے تیرے بغیر کسی نے ملاحظہ نہیں کیا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تھا، آواز ملی تھی لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے ہو، اے موسیٰ سقط نہیں لا سکتے ہو۔ پھر بتاؤ اس مقام کا کیا عالم ہوگا جب نبی کونین جسم اطہر کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جس نبی نے ہمیں زمین پر فراموش نہیں کیا، آسمان پر فراموش نہیں کیا، وہاں پر جو گفتگو ہوئی، بس اسی بات پر میں اختتام پر آؤں گا، جو گفتگو ہوئی، گفتگو کیا تھی؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کیا لائے ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ کے بارگاہ میں کیا کمی ہے؟ ساری خدائی خدا کی ہے، ساری کائنات رب ذوالجلال کی ہے۔ رب پوچھتا ہے آج کی رات اے مصطفیٰ کیا لائے ہو؟ تو حبیب ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ سبحان اللہ۔ آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، پھر بھی ہمیں یاد الہی نہ آ جائے، پھر بھی ہمیں معراج مصطفیٰ نظر نہ آئے، پھر بھی آپ کو نماز کا فلسفہ نظر نہ آ جائے۔ جب التحیات میرے حبیب پڑھتے ہیں، رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، رب فرما دیتا ہے السلام علیک یا ایھا النبی۔ سبحان اللہ۔ جب رب نے سلام بھیجا
تو سرکار نے ساری امتیوں کو شامل فرمایا یہ وقت تو بڑا سہانا وقت ہے، یہ وقت وہ ہے کہ میں ساری امت کو جوڑ دوں، میں اپنے سارے غلاموں کو اپنے ساتھ کر لوں۔ فرمایا آقا کونین نے زبان مبارکہ کو جنبش عطا فرمائی تو جو جملے نکلے وہ جملے اس انداز سے تھے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سبحان اللہ، التحیات بن گیا۔ آنے لگے تو فرمایا یا رب ذوالجلال کیا عطا کر رہے ہیں، میں کیا لے کر جاؤں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا 50 وقت کی نماز لے کے جاؤ۔ کتنی؟ 50 وقت کی نماز لے کر جاؤ۔ آقا کونین تشریف لائے، پھر راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے۔ کیا ہوا؟ وجہ کیا ہے؟ کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا اللہ کا بڑا کرم ہے، 50 ٹائم کی نماز لایا۔ فرمایا زیادہ ہے، امت برداشت نہیں کرے، رب مہربان ہے، لوٹ جاؤ۔ اللہ اکبر، لوٹ جاؤ، اللہ سے کہہ دو کچھ کمی کر دے۔ سرکار پھر پلٹ گئے۔ کیا ہوا؟ یا اللہ امت ناتوا ہوگی، کمزور ہوگی، نہیں بار اٹھا پائے گی، کچھ کم کر دو۔ 5 کم کر دی، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، ایک سلسلہ چلا۔ تو جب 5 ہی رکھنا تھا تو یہ 50 کیوں دی؟ تو کچھ چیزیں جب آپ محبت کے اس مرتبے پر فائز ہو جائیں گے تو ہمیں ملنا شروع ہو جائیں گے۔ کچھ چیزیں عقیدت سے ملتی ہیں، تو جب ہم نے عقیدت کو دیکھا، عقیدت کو لایا، تو ہم نے دیکھا کہ جیسے حضرت بیان کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے ہو۔ تو موسیٰ نے سوچا کہ کم سے کم ایسا سبب بنایا جائے کہ جو آنکھیں رب کی بارگاہ کو، اللہ کو بار بار دیکھ کے آئے، اللہ کی زیارت بار بار دیکھ کر آئے، آج تو ان آنکھوں کی میں زیارت کر لوں۔ سبحان اللہ۔ پھر ادھر سے رب کی طرف سے بھی تو حکمت تھی، رب بھی تو چاہتا تھا، جس نے فرمایا کہ اے جبریل جاؤ اور میرے مصطفیٰ کو کہہ دو رب تیری دیدار کا مشتاق ہے۔ سبحان اللہ، رب آپ کی دیدار کا مشتاق ہے، تو رب بھی تو چاہتا تھا یہ محبوب بار بار میرے پاس آتا رہے، اس لیے وقفہ دیا گیا۔ جب آخری بار 5 نمازیں لے کر سرکار تشریف لانے لگے، رحمت نے آواز دی ہے، رب ذوالجلال فرما رہے ہیں اے میرے مصطفیٰ، اے میرے حبیب، تجھے میرے نبی ہی نہیں بنایا ہے، تجھے میں نے اپنا محبوب بنا دیا ہے، تجھے میں نے اپنا محبوب مقرر کیا ہے۔ آپ نے دل توڑ کے نہیں جانا ہے، کہیں یہ محسوس نہیں کرنا ہے 50 نمازیں دی ہے، 5 رہ گئی ہے، جب میں نے گھٹا دی ہے، تعداد کم کر دی ہے، رکعت کم کر دی ہے، ثواب میں بھی کمی ہوگی، اے میرے مصطفیٰ 5 نمازیں لے کر جاؤ، 50 کا ثواب عطا کر دوں گا۔ 5 پر اللہ نے ہمیں 50 کا ثواب عطا فرمایا۔ یہ نماز جب لے کر آئے تو اپنے گنہگار امت کا خیال تو تھا، اس نماز کا مقام تو دینا تھا۔ جب دیوانوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا لے کر آئے ہو، کیا کیا وہاں جا کر، تو سرکار نے فرمایا کہ تمہارا نبی مکہ المکرمہ سے لامکاں پر گیا ہے اور اللہ کی معراج کی ہے، آج کی رات معراج کی ہے، میں نے اللہ کی زیارت کی ہے، اور تمہارے لیے میں نماز لے کر آیا ہوں، جو نماز کے ذریعے سے مومن معراج کر لے گا۔ سبحان اللہ۔ تبھی تو عاشق کہتا ہے ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ۔ جب انسان یہ ماتھا زمین پر رکھتا ہے تو انسان یہ احساس کرتا ہے میرا کوئی وجود نہیں ہے۔ جب تمہارا ماتھا زمین بوش ہوتا ہے، تمہاری جوانی جواب دیتی ہے، تمہاری جوانی کا شباب ٹوٹ جاتا ہے، تمہاری طاقت ٹوٹ جاتی ہے، تمہارا سرمایہ ختم ہو جاتا ہے، جب تم جھک جاتے ہو تمہارا دل و دماغ یہ گواہی دے رہا ہے آخر ایک بارگاہ تو ہے جس بارگاہ کے اندر مجھے خم کر دیا گیا، تم جھک رہے ہو، رب تمہیں ساری کائنات میں بلند کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، وہ جو جھکنے سے تمہیں بلندیاں دے دے، وہ راز جو تمہیں گر جانے پر بلندیاں عطا فرما دے۔ تبھی تو میرے آقا نے فرمایا جب تم زمین بوس ہوئے، جب تم سر بسجود ہوئے تو تم نے رب کو لیے ہاتھ دراز کیے، تم نے رب کو پکارنا چاہا یا رب ذوالجلال، یا اللہ میری مدد فرما۔ تو میرے آقا فرماتے تو نے تو ایک بار رب کو یاد کیا،
रब ने 70 बार जवाब दिया है, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। मांग मेरे बंदे, क्या मांगना चाहता है, इल्तिजा कर, तू क्या इल्तिजा करना चाहता है। मैंने दुनिया की भलाई भी तुझे अता कर दी, आखिरत की जन्नत भी तुझे अता कर दी। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। इस नमाज के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अब यही नमाज जो आज की रात में हमें दी है, हम सोचे हम चोरी से कैसे बचे, हम गीबत से कैसे बचे, हम बुराई से कैसे बचे, बदकारी से कैसे बचे, बेहयाई से कैसे बचे। तो अल्लाह का कुरान एक फार्मूला दे रहा है तुम्हें, अगर तुम नमाजी बन गए अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अगर तुम नमाजी बन गए, तुम्हारे दिल में नमाज की मोहब्बत कायम हो गई, सारी दुनिया हीच नजर आ जाएगी, तुम्हें नमाज के मुकाबले में सारी दुनिया बेकार नजर आ जाएगी। जब तक तुम झुकोगे नहीं तुम्हें चैन नहीं आ जाएगा, जब तक तुम झुकोगे नहीं तुम्हें मजा नहीं आएगा। और वो क्या है, सुभान अल्लाह, जो अल्लाह के प्यारे हैं उन लोगों से पूछो इसकी कदर क्या है, जिन लोगों ने अपना आप अल्लाह के हवाले किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हैं रास्ते में, अल्लाह ने माल भी दिया, असबाब भी दिया, खड़े हैं तो बीच में फरिश्ते इंसानी लिबास में आए, कुरान पढ़ने, फरमाया करीब आ जाओ, ये जो तुम पढ़ रहे थे फिर पढ़ना शुरू कर दो। फरमाया कि ये तो हम अपनी मर्जी से पढ़ रहे थे, आपके लिए पढ़ेंगे तो उजरत चाहिए, अगर आपकी वजह से इसको पढ़ेंगे तो मुआवजा चाहिए, आपकी वजह से पढ़ेंगे बदला चाहिए। फरमाया तुम्हें क्या बदला चाहिए, फरमाया मैं तुम्हें एक माल तुमसे लेना चाहता हूं, जितनी ये बकरियां हैं ये सारे हमारे हवाले कर दो। सुभान अल्लाह, सारी बकरियां हवाले कर दी, फिर रुक गए, फिर फरमाया कि और पढ़ो, मेरे दिल को अभी चैन नहीं आया, और पढ़ो। फरमाया क्या है, इसका पढ़ेंगे तो मुआवजा चाहिए। फरमाया तुम्हें क्या चाहिए, फरमाया जो घर में माल रखा है सारा माल हमारे हवाले कर दो, सारी जायदाद हवाले कर दे। फरमाया फिर पढ़ो, अल्लाहु अकबर। फरमाया अब तेरे पास क्या रह गया है कि मैं कुरान किसी लफ्ज में पढ़ूं, तूने बकरियां दे दी है, मालो असबाब दे दिया है, अब बताओ मैं किस अंदाज में कुरान पढ़ूं, किस इवज में पढ़ूं। फरमाया आपको बकरियां तो मैंने दे दी है, एक एहसान मुझ पे करो, तुम कुरान सुनाते चले जाओ। इन बकरियों के लिए तुम्हें एक रखवाला चाहिए, इनके लिए एक मुहाफिज चाहिए, तुम्हारी बकरियों की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ करता हो, मुझे तुम सुबह भी कुरान सुनाते रहो, शाम को भी कुरान सुनाते रहो। हम कहां हैं, इस्लाम के शहजादों सैयदना उमर खिताब खड़े हैं, मुसल्ला इमामत पर खड़े हैं, जिस्म पसीने से शराबोर है, जिस्म पसीना पसीना है, रो रहे हैं, पूछते हैं ऐ उमर तुम्हें क्या हो जाता है, जब तुम नमाज के लिए जाते हो तुम्हारी आंखें अश्कबार है, तुम्हारा जिस्म पसीना पसीना है, कौन सी चीज तुम्हें रुलाती है। फरमाया मेरे भाइयों, इस कुरान को अल्लाह ने पहाड़ों पर नाजिल करना चाहा, इसके 12 कुरान चलिए, अल्लाह का कुरान फरमाता है वो पहाड़ रेजा रेजा हो गए। मुझ उम्र की क्या ताकत है, मैं अल्लाह के इस कलाम की तिलावत करूं, मैं इस कुरान को अपने जुबान से पढ़ूं, ये तो मेरे मुस्तफा का एहसान है। ये कुरान सिराए मुस्तफा से निकला है, जुबान मोहम्मद से निकला है। आज मुसल्ले पर खड़ा होकर उमर भी तिलावत कर रहा है, सिद्दीक भी तिलावत कर रहा है, हज़रत अली भी तिलावत कर रहा है, हज़रत उस्मान भी तिलावत कर रहा है। ऐ इस्लाम के शहजादों, ये बातें गोश गुजार करने का मकसद ये है, आज अपने घरों में जब पलट के जाओ तो अपनी अलमारियों की तरफ नजर दौड़ा करके देखना, तुम्हारे कुरान के ऊपर 4-4 जुज़दान लगे होंगे, कोई धूल उड़ाने वाला नहीं है। हमने उस कमरे को अपने मकान पे किसी कोने पर मुंतहिब कर दिया है, जिसमें 2 नमाज रख दी है, 2 तस्बीहें रख दी है और 2-4 कुरान हसूल बरकत के लिए रख दिए हैं। ऐसा नहीं करना है। ऐ मोमिन, ये कुरान तेरा ज़खीरा है, ये कुरान तेरी जिंदगी है, ये कुरान तेरा ईमान है, ये कुरान तेरी जान है। जब तो अपना आप कुरान के हवाले कर देगा तो अल्लाह का कुरान पुकार करेगा, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ऐ लोगों, तुम परेशान ना हो, इस दिल को सुकून देना है। सूरह यासीन की तिलावत करो, सूरह बकर की तिलावत करो, सूरह यूसुफ की तिलावत करो, अल्लाह तुम्हारे दिल के गुबार को दूर फरमा लेगा। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लु अलैका या रसूलल्लाह
सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। आज हमारी मस्जिदें खाली है। कभी एहसास है इस वक्त चारों तरफ अपनी मस्जिद को देखें, दूर मत देखो। जब इस्लाह की निगाह दिखाओ, सबसे पहले अपनी तरफ नजर को दौड़ाओ। रात सोने से पहले अपना एहसार कर लिया करो, अपना हिसाब कर लिया करो, अपने दिल से अपनी जिंदगी के मामलात को शेयर कर लिया करो। सोने से पहले जिस गफलत की नींद में तुम पड़ रहे हो, क्या मालूम सुबह का सूरज तुम्हारी आंखें देख पाए या ना देख पाए। तुम बिस्तर आराम पर जाने से पहले अपने मामलात को सीधा कर लिया करो, क्योंकि मौत तुम्हें सोचने का मौका नहीं देती है। ये वक्त तुम्हें कभी सुलझने का वक्त नहीं देती है। खुश नसीब वही लोग हैं जो हर वक्त हर मामलात में अपने आप को अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए तैयार रखता है। लोग सबक देते हैं, ऐ इंसान जब घर से निकलते हो तो अपना पता जेब में लेके निकला करो कि चेहरे हादसे तुम्हारे चेहरे के निशान मिटा डालते हैं। लोग परेशान हो जाते हैं कि मेरी जनाज़गाह कहां है, मेरा लाशा कहां है, मेरा जिस्म कहां है। ऐसे हादसे तुम्हारे सामने हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हाथ नहीं लगते हैं। ऐ इस्लाम के शहजादों, अल्लाह ने तुझे अजीम बनाया है, अल्लाह ने तुझे इज्जत वाला बनाया है, अल्लाह ने तुझे शर्फ वाला बनाया है, अल्लाह ने तुझे मकाम इज्जत दिया है, अल्लाह ने तुझे मकाम शर्फ दिया है। ऐ इंसान, तेरा दिल क्यों नहीं टूटता है? तेरा दिल क्यों नहीं अल्लाह की बारगाह से लगता है? तेरा दिल आजान सुन के मस्जिद के दरवाजे को दस्तक क्यों नहीं देता है? रात की तारीकी में ऐ मेरे नौजवान भाई, गुनाह की तरफ दौड़ने वाले, दुनिया की नजरों से छुप के गुनाह करने वाले, तुम्हारी जुबान से लोग अमन में नहीं, तुम्हारे किरदार से लोग अमन में नहीं, तुम्हारे मामलात से लोग अमन में नहीं। अगर नहीं तो हमारा ठिकाना कहां होगा, हमारा इंजाम कहां होगा, हमारा नतीजा कहां होगा? जिंदगी को बेहतर बनाना है तो अल्लाह ने तुम्हें मकसद दिया है, अल्लाह ने तुम्हें मिशन दिया है कि मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत, अपनी बंदगी, अपनी खुशनुदी के लिए पैदा किया है। जो लोग नमाज से दूर हैं, कुरान से दूर हैं, सिस्टम से दूर हैं, समझ लो वो बर्बादी की तरफ है। वो जहन्नम के होलनाक वादी को आवाज देते हैं। उस जहन्नम के लिए अगर एक चिंगारी रुई जमीन को दिखा दी जाए, सारी जमीन जलकर खाक से तरह हो जाए। ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अपने आप को जहन्नम से बचा लो, अपने बच्चों को जहन्नम से बचा लो, अपने अहबाब को जहन्नम से बचा लो, अपने परिवार को जहन्नम से बचा लो। ये मस्जिद की मिंबर महराब तुम्हें सदाएं दे रही है, हय्या अलस सलाह कह रही है, हय्या अलल फलाह कह रही है। ऐ लोगों, आओ भलाई की तरफ आओ, ऐ लोगों कामयाबी की तरफ आओ, ऐ लोगों नजात की तरफ आओ, ऐ लोगों फलाह की तरफ आओ, ऐ लोगों राह रास्त की तरफ आओ। ऐ इंसान तो कितना जफाकश है, आवाज सुनता भी है, फरमाने इलाही को समाअत भी करता है, अपने घर के दरवाजे को बंद कर देता है। तेरी जवानी कब तक जवानी रहेगी? तेरे असबाब कब तक असबाब रहेंगे? लिहाजा आओ आज अहद कर लें। इस रात में बैठने का मकसद यही है, पूरी जिस रात के लिए आज बैठे हैं हमने पूरी जिंदगी इसको निभाना है। जब तुम एक नमाजी बन गए, तुम कभी झूठ नहीं बोल सकते हो। तुम नमाजी बन जाओ, तुम्हारा जिस्म कभी नापाक नहीं रह सकता है। जब तुम नमाजी बन गया, तेरा चेहरा कभी गुर्द आलोक नहीं रह सकता है। जब तुम नमाजी बन गया, तेरा लिबास कभी नापाक नहीं रह सकता है। जब तुम नमाजी बन गया, तेरे कान कभी किसी की गिबत सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब तुम नमाजी बन गया, तेरी निगाहें कभी गैर महरम के लिए नहीं जा सकती है। जब तू नमाजी बन गया तो तेरा दिल माँ के कदमों की तरफ लेकर जाएगा। जब तू नमाजी बन गया, यही नमाज तुझे कुरान की तरफ बुलाएगी, यही नमाज तुझे मस्जिद की तरफ बुलाएगी, यही तुझे अल्लाह की बारगाह में जोड़ने के लिए असबाब पैदा कर देगी। जरूरी है, ये नमाज मोमिन की पहचान है। अगर तुम सच्चे नबी के वफादार हो, सच्चे नबी के मानने वाले हो, हकीकत में नबी के चाहने वाले हो, तो आओ नबी से मोहब्बत करने वालों, नबी की मोहब्बत का डंका बजाने वालों। सरकार ने फरमाया ये नमाज मेरे दिल का सरूर है, ये नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। बताओ अगर 5 वक्त की नमाज भी नहीं है, ये शब हमारे लिए मुस्तहब अमर है। आज बैठोगे नहीं, तुम्हारे लिए कोई अज़ाब नहीं। जितना हम बैठे हैं, अल्लाह का जिक्र किया, इसकी बरकत से अल्लाह ने हमारे गुनाहों को बख्श दिया। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। लेकिन एक नमाज
नमाज है जो फर्ज ऐन है। हर आकिल मर्द पर, हर आकिल औरत पर, हर बालिग मर्द पर, हर बालिग औरत पर नमाज फर्ज है, फर्ज ऐन है। इसको हर बंदे ने अदा करना है, हर फर्द इसको अदा करना है। हम हर निजाम को उल्टा लेके दौड़ रहे हो, इसके अंदर थोड़ी चेंजिंग पैदा करो। जनाजे की तरफ दौड़ते हो, पता चलना चाहिए मेंढर में जनाजा हो गया, यहां से दौड़ जाते हो। जाना चाहिए ये नमाजें कुछ शाइर अल्लाह हैं, कुछ इबादत अल्लाह ने शाइर अल्लाह कहा है, वो नमाजें हैं। जैसे उलमा किराम बैठे हैं, नमाजें ये हर नमाज है, ये 5 वक्त की नमाज का अलग कुछ मामला है, इसकी तो कोई भी इमामत कर ले। जो नमाज जुमा है, नमाज ईदैन है, नमाज जनाजा है, ये मामलात कुछ अल्लाह की बारगाह में मुकाम रखती है, इसको शाइर अल्लाह भी कहा जाता है। इसलिए इस्लाम के शहजादों मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूं, नमाज जनाजा फर्ज किफाया है। फर्ज किफाया उस फर्ज को कहा जाता है, अगर मेरे घर से, मेरे मोहल्ले से मेरा भाई उस जनाजे में चला गए, हमारे सब के ऊपर से फर्ज अदा हो जाएगा। अगर पूरे मोहल्ले से कोई नहीं जाता, उसके हम सब गुनहगार हैं। लेकिन कभी हमने सोचा इस फर्ज ऐन के लिए जहां 5 वक्त की अजान सुन के हमारे कान मस्जिद की तरफ हमें नहीं बुला पा रहे हैं। फिर दूसरी तरकीब मैंने दी है, 2 मिनट का वक्त और लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह मुझे लगा कुछ नींद भी शायद गलबा कर रही है। तो मामलात ये हैं कि जैसे पहली सफ है, पहली सफ के लिए मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह की तरफ से रहमत जब नाजिल होती है, मुसल्ला इमामत पर जाती है, एक इधर निकलती है उधर निकलती है। यानी फिर फरमाया कि पहली सफ में बैठने वाला गोया एक ऊंट अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर देता है, और सबसे आखिर में आने वाला वो अल्लाह के रास्ते में एक अंडा कुर्बान कर रहा है। सुभान अल्लाह। कभी हम सोच रहे हैं जुमा का मामला हो, 5 वक्त नमाज का मामला हो, हम सोचते हैं हमें दरवाजे में पीछे हमें कितनी मर्तबा उठा करके सफ को दुरुस्त करना पड़ रहा है। वो क्या आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे बाहर निकलने में आसानी कहां से हो, मैं बाहर कैसे निकलूं, इसलिए जितना पीछे बैठूंगा उतना जल्दी बाहर चला जाऊंगा। लेकिन जो सवाब आपको पहले जब घर से टाइम से आए हो, घर से आपको अल्लाह ने टाइम से वक्त दिया है, तो बैठना ही है, तो अल्लाह की बारगाह में ऊंट कुर्बान करो, एक अंडा क्यों कर रहे हो वहां बैठ करके। पहली साफ में ज्यादा सवाब, आखिरी साफ में कम सवाब। जनाजे में इसी का बरअक्स हो जाता है। जनाजे में मेरे आका फरमाते हैं जो सबसे आखिर वाली साफ में बैठता है, अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा सवाब उसको मिलता है। ईमानदारी से बताओ हम क्या कर रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं। हम उस वक्त धक्का धक्का धक्कम धक्का एक दूसरे को खींच खींच के दौड़ रहे हैं जनाजे की तरफ, हालांकि वो मेरा रिश्तेदार भी नहीं है, हमारे मोहल्ले में है। चेहरा देखना भी फर्ज मेरे ऊपर नहीं था, लेकिन मैं उसके वारिसों को खींच के पीछे कर रहा हूं। मुझे मुंह देखने जाना है, क्यों जाना भाई, तेरे मुंह देखने से बख्शा जाएगा वो, इसलिए जाना है कि उसके वारिस मुझे देख लें कि मैं इस जनाजे पर आया हूं। क्या दिल में यही मामला थे? ये कुछ कड़वे सच हैं, जब तक इनको पिएंगे नहीं हम इस्लाह की तरफ नहीं जा सकते। हमें जनाजे में चाहिए, तरीके से चाहिए, थोड़ा रुक के आए, ठहर के जाएं मामलात के। बाकी रहा मामला जो कुछ सफाई के हैं, गुस्ल के मामले हैं, हमारा आधा आधा जिस्म नापाक रहता है। नौजवानों से गुजारिश मैंने बारहा की है, ये एक दरिया है इल्म आपके मोहल्ले के बीच में, कोई टाइमिंग एडजस्ट करो। ये दुनिया है, ये फानी है। जब हमारे माँ बाप हमारे सरों पर थे, उनका भी एक जमाना बचपन था, जवानी थी, बड़ा पाया, हमने भी अपने बचपन को गुजार दिया, जवानी को गुजार दिया। आज हमारे बच्चे जवानी के दहलीज पर हैं। ये एक सफर जा रहा है, दूसरा उसकी जगह पर आ रहा है। अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देने के लिए अपनी इस्लाह की कोशिश करो। मोमिन वही है जिसका जिस्म भी पाक हो, जिसकी रूह भी पाक हो। जब तक आपका लिबास पाक नहीं होगा, आप नमाज पढ़ेंगे तो आप फैज याब नहीं हो सकते। आपका रूह नापाक है। हमारे नमाज पढ़ रहे हैं, गंदे गंदे ख्यालात नमाज में आ रहे हैं, कहां है वो नमाज, कहां है हमारे मामलात। अल्लाह के हबीब फरमाते नमाज में खड़े हो, इस अंदाज में हो, आप अल्लाह को देख रहे हो, अल्लाह तुम्हें देख रहा। कसम रब्बे जुल जलाल की, इससे बेहतर जायका कोई नहीं है, नमाज से बेहतर इबादत कोई नहीं है, नमाज से आला इबादत कोई नहीं है। तुम नमाज की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर तो देखो, तुम खाना छोड़ सकते हो, तुम भूखे रह सकते हो, लेकिन बेनमाजी नहीं रह सकते हो, तुम नमाज को तर्क नहीं कर सकते हो। सफर में जाओ, सफर में जाओ, अल्लाह अकबर, कितनी कुर्बान जाओ इस्लाम की शार इस्लाम पर, आपके लिए आसानियां हैं। सफर में जाएं,
आपके लिए कसर नमाज है, अगर वो भी नहीं आपके लिए कज़ा का हुक्म है, कम से कम तरीका कार को पकड़े, अपने नौजवान बच्चों को इल्म दीन की तरफ लाए। जनाजे के मामलात सीखने की जरूरत है, गुस्ल के वाजिबात की हैं। जब आप उन चीजों को शेयर करोगे, आप उसको सीखेंगे, आप उसको हासिल करेंगे। यही मामलात आप हमारे माँ बहनों के साथ शेयर करेंगे, घर में अपनी बीवी से ही मसाइल शेयर करोगे, अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ उनको बताएंगे कि पाकी और नापाकी के मामले क्या है। ये तो हमारा मामला है। अल्लाह के बारगाह में दुआ करें, अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जिस अकीदत से, जिस एहतराम से इस महफिल को आप लोगों ने सजाया है, अल्लाह करे अल्लाह तुम्हारे दिलों को इसी तरह आबाद फरमाए, आपके घर बार को इसी तरह आबाद फरमाए, और आज की रात में उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए, आलम इस्लाम के हाल पर करम फरमाए। मुल्क शाम और तुर्की के अंदर जो ज़लज़ले के अंदर लोग मुतासिर हैं, अल्लाह उन बीमारों को शफा फरमाए, उन मरीजों के लिए शफा अता फरमाए। जो लोग शहादत के दर्जे पर फाइज हो गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात में मज़ीद बुलंदी अता फरमाए। मुसलमान परेशानी के आलम में उसकी दूर करने के लिए नमाज तहज्जुद का एहतमाम करो। फिर देखो जायका कितना है। जब तुम रब से जुड़ोगे ना, ये दुनिया के झोंके आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आपकी जुबान बरसर स्टेज रहेगी, और सही कौम की रहबरी के लिए दुनिया की कोई ताकत तुम्हें खैफ नहीं कर सकती है। जब तुम नमाज से अपनी रूह को ताजगी दोगे, कुरान से रूह को ताजगी दोगे, नमाज से रूह को ताजगी दोगे, मौत को हथेली पे रख के चलो और देखो कि इसके अंदर मजा कितना है, इसके अंदर चाशनी कितनी है। ये मत डरो आज के हुक्मरानों से, जुल्म सितम की वादियां आती भी हैं, जाती भी हैं। जब जब जुल्म बढ़ता है हम शिद्दत कह के गुजर जाते हैं, जब जब जुल्म बढ़ेगा नमरूद और फिरौन कह के गुजर जाते हैं। और ये अल्लाह की रहमत पर भरोसा है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद नहीं होना है। ये दौर गुजरते रहते हैं, ये दौर बदलते रहते हैं, इस बदलते दौर में आपको भी बदलना है। कहते हैं कि जिस इंसान को अपना आप बदलना नहीं आता है, वो माशरे की तकदीर को क्या बदलेगा। जमाने की आहट को समझना है, जमाने की हरारत को समझना है। दुश्मन जिस कसौटी पे आपको खड़ा उतारना चाहता है, उसकी आवाज को आपने, उसकी धनक को आपने महसूस करना है। सफों में इत्तेहाद लाना है, जमात में मोहब्बतें लानी है, घरों में प्यार लाना है, यूनिटी लानी है, सिस्टम को पकड़ना है। अगर तुम्हारा कोई रास्ता बंद कर देता है, तुम पलकें बिछा डालो, दुश्मन भी तुम्हारे ईमान पर नाज करता नजर आ जाएगा, दुश्मन भी तुम्हें सलाम करने पर मजबूर आ जाएगा। जिस रास्ते से जाओगे, जिस शहर से जाओगे, जिस बस्ती से जाओगे, मेरा ईमान ये कहता है यहां के कंकर भी तुम्हें सलाम करेंगे, यहां के पत्थर भी तुम्हें रास्ता दे देंगे, यहां के जंगल भी तुम्हें रास्ता दे देंगे। ये दुश्मन क्या है, मोमिन तो एक शीशा पिराई दीवार की तरह खड़ा है। दुश्मन आते रहेंगे, चले जाते रहेंगे। अल्लाह ताला हमारे आलो औलाद की हिफाजत फरमाए, बीमारों के लिए शफा फरमाए, ईमान वाली उम्र अता फरमाए। और जो ये हालात चल रहे हैं जिसके अंदर लोग तजब्जुब में हैं, या अल्लाह से जालिम हुक्मरानों से महफूज फरमा, मुल्क में अमन कायम फरमा, खित्ते में सुकून कायम फरमा, मुल्क में आराम पैदा फरमा, लोगों के अंदर सुकून की लहर को फिर से वाबस्ता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।